اسلام آباد میں تشدد کا شکار کم سن ملازمہ کی کہانی مزید گھمبیر ہو گئی. بچی کا نام طیبہ نہیں ثنا ہے. 2014 میں لاپتہ ہوئی. اصلی ماں ہونے کی دعوے دار خاتون سامنے آ گئی. کل ڈی این اے ٹیسٹ کے لیے بھی تیار. آواز اٹھانے پر دنیا نیوز کی شکر گزار. دنیا نیوز والوں کی خبر چل رہی تھی, وہاں سے ہمارے بیٹی کی تصویر ہم نے بھی پہچانی اور ہمارے گاؤں والے نے بھی پہچاننے کے لیے وہی ثنا ہے. کوثر بی بی اصلی ماں تو پھر بچی کون لے گیا؟ مبینہ والدین ہونے کے دعوے دار کون؟ صلح کس نے کی؟ حوالگی سے پہلے کیا مبینہ والد سے ناظرہ فیملی رجسٹریشن سرٹیفکیٹ یا فارم بے لیا گیا؟ بڑے سوالات کا جواب کون دے گا؟ چیف جسٹس ثاقب نثار کا ملازمہ تشدد کیس کھلی عدالت میں سننے کا فیصلہ. کل سماعت ہوگی. رجسٹرار اسلام آباد ہائی کورٹ نے رپورٹ جمع کرا دی. صلح نامہ, پولیس کی تفتیش, ایڈیشنل سیشن جج اور بچی کے بیانات شامل. سرجیکل سٹرائک کا دعویٰ مسترد, امکانات بھی رد. بھارتی آرمی چیف کھوکھلے بیانات سے خود کو دھوکہ دے رہے ہیں. سپہ سالار جنرل قمر جاوید باجوہ کہتے ہیں بھارت کی جارحیت کا بھرپور جواب دینے کے لیے تیار ہیں. نواز شریف کی عوامی عہدوں کی تفصیل سپریم کورٹ میں جمع. باتیں نہ بنائیں, دستاویزات لائیں. اخباری خبروں پر پھانسی لگوائیں گے تو آپ کا موکل بھی نہیں بچ پائے گا. جسٹس عظمت سعید کا نعیم بخاری سے مکالمہ. عمران خان اصل پتہ کھیلنے کے لیے تیار. کل ثابت ہو جائے گا مریم نواز مے فیئر فلیٹس کی مالک ہیں. کپتان کو یقین, کہتے ہیں جو کچھ دے دیا, کیا اس سے زیادہ بھی ثبوتوں کی ضرورت ہے؟ انہوں نے صرف الزام لگایا, ہر اس فورم پہ الزام لگایا, اور ثبوت دینے کی جب بات آئی تو ان کا ٹرک بھی گم گیا اور ثبوت بھی گم گئے. ثبوت کی باری پر شواہد کے ٹرک گم. عمران کی نئی قلعہ بازی فیل ہو گئی. ڈاکو کا شور اور بغل میں جہانگیر ترین. دانیال عزیز نے نقل اتار دی. جو آپ کہتے ہیں نا کہ وہ اپنے نام پہ کاروبار نہیں کرتے, یہ کائنڈلی یہ جو حاجی خان ہے اور اس کا جو کک ہے جہانگیر ترین کا, ان کی تصویریں بھی ویب سائٹ پہ ڈالیں, پی ٹی آئی کی ویب سائٹ پہ. کریں ہمت. پارلیمنٹ میں جائیں گے, نون لیگ کی نیندیں اڑائیں گے. پیپلز پارٹی بہت جلد سڑکوں پر ہوگی. بلاول کا ذوالفقار علی بھٹو کی سالگرہ کا کیک کاٹ کر لاڑکانہ میں خطاب. آپریشن ضرب عزم نے دہشت گردوں کی کمر توڑ دی. اب ضرب قلم کی بھی ضرورت ہے. لوگ زبان و بیان کا سلیقہ بھولتے جا رہے ہیں. وزیر اعظم دھیمے لہجے میں گہری بات کہہ گئے. پنجاب ایپیکس کمیٹی کا اجلاس, نیشنل ایکشن پلان کے تحت اقدامات کا جائزہ. شہباز شریف کہتے ہیں پاکستان سے دہشت گردی کا لفظ مٹا کر ہی دم لیں گے. شہری آفس لاہور میں جعل سازی. دنیا نیوز نے مرکزی ملزم کا کھوج لگا لیا. رانا اشتیاق سول کوڈ کا ناظر تھا. جعلی چیکس پر 7 کروڑ روپے سے زائد نکلوائے. کوئی آفیسر اور اہلکار قانون کے شکنجے میں نہ آیا. لاہور کے تعلیمی اداروں میں سرعام منشیات بکنے لگی. طلبہ کے ساتھ پولیس والے بھی ملوث. 5 افراد گرفتار. سرکاری گرلز کالجز میں نشہ آور چیوئنگ گم کی فروخت. پنجاب اسمبلی میں تحریک التوا جمع. ملک بھر میں ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی کا ایکشن. غیر معیاری ادویات فروخت کرنے پر لاہور, اسلام آباد اور کراچی میں کئی میڈیکل سٹور سیل. کراچی کے علاقے شادمان میں عائشہ کی مبینہ خودکشی. والدین کا سسرالیوں پر تشدد کا الزام. شوہر, سسر, ساس اور نند کے خلاف مقدمہ درج. میری بچی ایسا نہیں کر سکتی. میری بچی کیسے کرے گی خود لٹکنا, اور اچھا وہ یہ سارے کام کر رہی ہے اور تم تماشا دیکھو گے. بادشاہی مسجد سے نالین پاک کی چوری کا کیس. لاہور کی سیشن کورٹ نے 13 سال بعد فیصلہ سنا دیا. تھانہ ٹبی سٹی کے تمام اہلکاروں کے خلاف کارروائی کا حکم.
दो जोड़े दोनों मर्दों के नाम, गुलाम शब्बीर दोनों बीवियों के नाम, खनाई माई नादरा हुकाम चकरा गए। दरिया खान में जिंदा खातून को मुर्दा करार दे दिया गया, शनाख्ती कार्ड जारी करने से इनकार। क्लासिकल मौसीकी का एक और रोशन सितारा डूब गया। उस्ताद फतेह अली खान को लाहौर के मोमिनपुरा कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक कर दिया गया। कश्मीर में यौम हक़ खुद इरादियत पर जगह जगह रैलियां, भारत मुखालिफ एहतजाज, आलमी बरादरी से मकबूजा वादी में मजालिम बंद कराने का मुतालबा। हक की आवाज गोलियों से दबाई नहीं जा सकती, वजीर आजम का भारत को दो टोक पैगाम। मिस्र में फंसे 4 पाकिस्तानी वतन वापस पहुंच गए, बहुत अजियत में दिन गुजारे, लौटने वालों का बुरे हालात का शिकवा। रोहिंग्या मुसलमानों पर जुल्मो सितम की इंतहा, बांग्लादेश और म्यांमार की सरहद पर कीचड़ में लथपथ 10 माह के बच्चे की लाश ने हर दिल दहला दिया। और बालाई इलाकों में हर तरफ बर्फ ही बर्फ, सयाहों की मस्तियां, आजाद कश्मीर की वादी नीलम और लीपा में रास्ते बंद। सना या तैयबा, ये राज अभी खुलना बाकी है। बच्ची एक और दावेदार 2 है। तशद्दुद का शिकार तैयबा की कहानी मजीद गंभीर हो गई। बच्ची और मुबैना वालिदैन गायब, असली मां होने की दावेदार खातून सामने आ गई। जी हां, कमालिया की कौसर बीबी के दावे से कई सवाल खड़े हो गए हैं। कौसर बीबी डीएनए कराने के लिए भी तैयार हैं और आवाज उठाने पर दुनिया न्यूज की शुक्रगुजार भी हैं। इसी बारे में हम देखेंगे यासिर मलिक की रिपोर्ट। कमसन बच्ची तशद्दुद केस में नया मोड़, बच्ची के असल वालिदैन कौन, नया सवाल उठ खड़ा हुआ। बच्ची की असल मां होने की दावेदार खातून दुनिया न्यूज इस्लामाबाद के दफ्तर पहुंच गई। 2 साल पहले बच्ची के फैसलाबाद से गायब होने का इंकिशाफ। कमालिया से इस्लामाबाद पहुंचने वाली खातून कौसर बीबी ने दावा किया कि तशद्दुद का निशाना बनने वाली बच्ची तैयबा नहीं, उसकी बेटी सना है। सना फैसलाबाद के घर में काम करने वाली अपनी 2 बहनों को मिलने फैसलाबाद गई और वहां से गायब कर दी गई। सना अपने बाप के साथ गई थी इन दोनों बहनों को मिलने और इन दोनों को कमर ने छुपा लिया। बोली कि वो यहाँ नहीं है, सुबह आएंगी तो सना को मिला देंगे, सना को आप छोड़ के जाए। उसके बाप ने उसके भरोसे पे सना को छोड़ दिया। जब उनके छोड़ कर चले गए तो कमर ने सना को कहीं भेज दिया और हमें फोन कर दिया कि आपकी बेटी लापता हो गई है। माँ होने की दावेदार खातून का कहना है 2 साल से बच्ची की तलाश में दर बदर फिर रहे थे। दुनिया टीवी पर बच्ची की तस्वीर देखी तो सना को पहचान लिया। दुनिया न्यूज वालों की खबर चल रही थी, वहाँ से हमारे बेटी की तस्वीर हमने भी पहचानी और हमारे गांव वाले ने भी पहचानने के लिए वही सना है और उनके साथ इतना तशद्दुद हुआ है। मां के हाथ में बच्ची के अगवा होने की 2 साल पुरानी FIR भी मौजूद है। अब सवालात के जवाब किसी के पास नहीं। कैमरामैन काशिफ बाजवा के साथ यासिर मलिक, दुनिया न्यूज इस्लामाबाद। फिर हुआ यूं कि बच्ची का दर्द बड़े मुनसिफ तक पहुंच गया। घरेलू मुलाजमा तैयबा तशद्दुद केस के मुतालिक आपको अपडेट करें, जहां चीफ जस्टिस ने खुली अदालत में केस सुनने का फैसला किया है। कल समाअत होगी। रजिस्ट्रार इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी तफसीली रिपोर्ट जमा करा दी है। DIG इस्लामाबाद को रिकॉर्ड और वर्सा को पेश करने का हुक्म दिया गया है। आइए देखते हैं आमिर सईद अब्बासी की रिपोर्ट। कमसिन बच्ची पर तशद्दुद का आज खुद नोटिस। रजिस्ट्रार इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में पेश। सुप्रीम कोर्ट का केस की समाअत खुली अदालत में करने का फैसला। DIG और SSP इस्लामाबाद को रिकॉर्ड और वर्सा को पेश करने का हुक्म। एडिशनल सेशन जज की अहलिया माहिन जफर भी तलब। अटॉर्नी जनरल को भी नोटिस जारी।
रजिस्ट्रार की जानिब से जमा कराई गई रिपोर्ट में बच्ची के वालिदैन और जज के दरमियान सुलहनामा, पुलिस की तफ्तीश और एडिशनल सेशन जज और बच्ची के बयानात शामिल हैं। दूसरी जानिब समाजी कारकुनों ने आसमा जहांगीर एडवोकेट के तवस्सुत से दायर दरखास्त में एडिशनल सेशन जज राजा खुर्रम, इनकी अहलिया माहीन जफर, बच्ची के वालिद, वजारत दाखिला और एडिशनल सेशन जज अतार रब्बानी को फरीक बनाया है। दरखास्त में कहा गया है बच्ची को सुप्रीम कोर्ट में पेश करने का हुक्म दिया जाए। दरखास्त में मेडिकल बोर्ड तश्कील देने और जज राजा खुर्रम के खिलाफ डिसिप्लिनरी कार्रवाई करने की भी इस्तदा की गई है। साथ ही रिपोर्टर इमरान वसीम के साथ आमिर सईद अब्बासी, दुनिया न्यूज, इस्लामाबाद। और अब सुप्रीम कोर्ट के कमरा नंबर 2 की बात करते हैं, जहां पर पैनामा केस की समाअत हुई और ये कहा गया कि नवाज शरीफ के अवामी ओहदों की तफसील सुप्रीम कोर्ट में जमा कराई गई। इसके अलावा ये कहा गया अदालत की जानिब से कि बातें ना बनाएं, दस्तावेजात लाएं। जस्टिस अजमत सईद ने ये रिमार्क्स दिए। ये भी कहा कि अखबारी खबरों पर फांसी लगवाएंगे तो आपका मुवक्किल भी नहीं बच सकेगा। पनामा लीक्स केस, वजीर आजम के अवामी ओहदों की तफसील अदालत में पेश। बेंच का लंदन फ्लैट्स के शरीफ फैमिली से 2006 से कबल कनेक्शन की दस्तावेजात पेश करने पर जोर। तहरीक इंसाफ के वकील की जानिब से कतरी खत फ्रॉड करार। वजीर आजम के बच्चों का इन्हसार इस खत पर है, केस से निकाल दिया तो तहरीक इंसाफ के काम भी नहीं आएगा। जस्टिस आसिफ सईद खोसा के रिमार्क्स। जस्टिस अजमत सईद ने तहरीक इंसाफ के वकील से कहा कि आपका मौकफ है कि ऑफशोर कंपनी और फ्लैट्स 2006 से पहले के हैं। ये इल्जाम खुद ब खुद साबित नहीं होगा। दस्तावेजात लाएं या कनेक्शन दिखाएं। अखबारी खबरों पर फांसी लगवाएंगे तो आपका मुवक्किल भी नहीं बचेगा। इमरान खान ने उठकर अपने वकील नईम बुखारी को तलकीन की कि मरियम नवाज के बेनिफिशियल मालिक होने पर बात करें। जस्टिस शेख अजमत सईद ने कहा कि मरियम के बेनिफिशियल मालिक और वजीर आजम के जेर कफालत होने का मौकफ मान लिया जाए तो तहरीक इंसाफ का केस फारिग हो जाता है। जस्टिस एजाज अफजल का कहना था कि जेर कफालत के हवाले से दलाइल हवाई किले हैं। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर इमरान वसीम के साथ अदील वड़ाइच, दुनिया न्यूज, इस्लामाबाद। वेलकम बैक। राहिल शरीफ ने कहा था कि पाकिस्तान ने सर्जिकल स्ट्राइक की तो भारत किताबों में पढ़ाएगा, और अब मौजूदा आर्मी चीफ कहते हैं कि उन्होंने एक तो ये भी कहा कि भारतीय आर्मी चीफ खुद को धोखा दे रहे हैं और साथ ही भारतीय दावा जो सर्जिकल स्ट्राइक का किया गया था उसे मुस्तरद कर दिया। जी हां, आर्मी चीफ ने भारतीय हम मनसब को आईना दिखा दिया। आर्मी चीफ ने सर्जिकल स्ट्राइक का भारतीय दावा मुस्तरद करते हुए कहा कि भारतीय आर्मी चीफ खुद को धोखा दे रहे हैं। भारत की किसी भी जारियत का मुकाबला करने के लिए हर वक्त तैयार हैं। नए भारतीय आर्मी चीफ की सर्जिकल स्ट्राइक की गीदड़ भभकी, आर्मी चीफ का करारा जवाब। भारत के सर्जिकल स्ट्राइक के दावे को मुस्तरद करते हुए जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा, भारतीय आर्मी चीफ खुद को धोखा दे रहे हैं। भारत के मुस्तकबिल में मजीद कार्रवाइयों के इम्कानात गीदड़ भभकियां हैं। ISPR के मुताबिक उन्होंने कहा, पाक फौज किसी भी जारहियत का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। गुज़श्ता दिनों भारत के नए आर्मी चीफ ने टीवी इंटरव्यू में दावा किया था कि भारत ने पाकिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक्स की और मुस्तकबिल में भी ऐसा किया जा सकता है। इससे पहले खुजदार में CPAC सेमिनार से खिताब करते हुए आर्मी चीफ ने बलोचिस्तान को पाकिस्तान का दिल करार दिया। उन्होंने कहा, पाकिस्तान की तरक्की बलोचिस्तान की तरक्की से मुंसलिक है। बलोचिस्तान is the heart of Pakistan. Success of Pakistan is enshrined in stability and development of Balochistan. So let us work jointly towards that end. सेमिनार में वजीर आला बलोचिस्तान नवाब सनाउल्लाह ज़हरी, कमांडर सदरन कमांड लेफ्टिनेंट जनरल आमिर रियाज, विफाकी वुज़रा, IGFC मेजर जनरल नदीम अंजुम और दीगर हुकाम के अलावा मुख्तलिफ यूनिवर्सिटियों के तलबा और तालिबात भी शरीक थे। एक और मामला जो रिकॉर्ड याफ्ता भी है, ट्रेजरी ऑफिस लाहौर में जालसाजी की बात हो रही है। दुनिया न्यूज ने मरकजी मुल्जिम का खोज लगा लिया। राना इश्तियाक सिविल कोड का नाज़र था, करप्शन पर निकाला भी गया था। जाली चेकों पर 7 करोड़ रुपए से जायद निकलवाए। कोई अफसर और एहलकार कानून के शिकंजे में अभी तक नहीं आया।
खबर की दुनिया से एक और बड़ी खबर। दुनिया न्यूज ने पहले बड़ी जालसाजी का सुराग लगाया, अब बड़े जालसाज को भी ढूंढ निकाला। तनाजा जमीन का हो, खानदानी या फिर बच्चों की हवालगी का मामला अदालत में जाए तो साइल को ज़रे जमानत जमा रकम कराने का हुक्म मिलता है और फिर अदालत के ट्रेजरी ऑफिस में रकम जमा होती है। फैसला होने पर जमा करवाने वाला ही उसी रकम को निकलवा सकता है। सिविल कोर्ट लाहौर के ट्रेजरी ऑफिस में भी साइलिन ने मुख्तलिफ मुकदमात में करोड़ों रुपए की रकम जमा करवाई, जिसे देखते ही फ्रॉडियों की राल टपक आई। फिर फ्रॉडिये फ्रॉड करते रहे और सरकार सोई रही। सिविल कोर्ट लाहौर के ट्रेजरी ऑफिस में बड़े फ्रॉड का मरकजी मुलजिम कोई और नहीं, सिविल कोर्ट ही का सिविल नाजिर इस्लामपुरे का रिहायशी राना इश्तियाक निकला। फ्रॉडिया जाली वाउचर बनाता रहा और पैसे निकलवाता रहा, किसी को कानो कान खबर तक न हुई। टीम दुनिया की तहकीकात के मुताबिक राना इश्तियाक साल 2005 में सिविल नाजिर तैनात हुआ। अदालती ट्रेजरी में करोड़ों रुपए देखे तो नीयत भी खराब हो गई। मरकजी मुलजिम ने जालसाजी करके 36 वाउचर बनाए और खजाना ऑफिस से 7 करोड़ रुपए निकलवाए। शहरी सलीम शाहिद भी इस जालसाजी की लपेट में आया, जिसने लाहौर में अराजी खरीदी और तनाजा उठने पर लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म पर 1 करोड़ 41 लाख रुपए बतौर गारंटी जमा करवाए। ताहम सलीम शाहिद 7 साल केस लड़ता लड़ता फिर मौत से ही हार गया। अलबत्ता केस का फैसला तो हो गया, लेकिन साथ ही खजाने से इसके 1 करोड़ 31 लाख रुपए गायब होने का इंकशाफ भी हुआ। हमारा तो इसमें कोई कसूर नहीं है। अगर ये फ्रॉड हो रहा है तो गवर्नमेंट के साथ हो रहा है, हमें तो हमारे पैसे वापस किए जाएं। हमारे साथ फ्रॉड हो रहा है और पता नहीं अब और कितनों के साथ हो चुका है। ये तो हमारी वजह से अगर बाकियों का भी भला हो जाए तो हम तो चाहेंगे कि हमारा भी भला हो और बाकियों का भी हो। टीम दुनिया ने खोज लगाया तो फ्रॉडियों के तरीक़ेकार का पता भी चल गया। अदालती और ट्रेजरी ऑफिस के अहलकार सलीम और दीगर साइलिन को हुक्मनामे वाला सादा सा रजिस्टर दिखाते रहे और इन्हीं हुक्मनामों पर पैसे निकलवाए और फिर ये जा वो जा। उसके बाद जो सुलह हुई, सुलह में जब वापस आए तो उन्होंने जरा डिग्री वापस लेते हैं तो पता चला कि ये 42 लाख रुपया आपका निकल चुका है। दुनिया न्यूज़ ने अब इस मैटर को बहुत अच्छे तरीके से थ्रैश करके उठाया है ताकि लोगों को जो है ये उनकी जरिए डिग्री मिल सके। 31 अक्टूबर 2010 को फ्रॉड बेनकाब हुआ तो मुकदमा बना, करप्शन साबित हुई और 15 दिसंबर 2010 को राना इश्तियाक को नौकरी से बरतरफ कर दिया गया। 4 अप्रैल 2011 को मुलजिम इंतकाल कर गया। करोड़ों के फ्रॉड का मरकजी मुलजिम खुद तो दुनिया से चला गया, लेकिन कई सवालात छोड़ गया। सबसे पहले तो ये कि क्या एक सिविल नाजिर इतना बड़ा फ्रॉड कर सकता है? क्या जजीज के जाली दस्तखत, जाली वाउचर खजाना ऑफिस की मिली भगत के बगैर कैश होते रहे? डेरा बुगटी के मुख्तलिफ इलाकों में सिक्योरिटी फोर्सेस का एक्शन, दहशत गर्दों के 4 कैंप तबाह, बड़ी तादाद में असलहा बरामद। गवादर पोर्ट को नेशनल रेलवे से मुंसलिक किया जाएगा। हवेलियां से खुंजराब और चीन तक रेलवे ट्रैक बिछाए जाएंगे। साद रफीक की प्रेस कॉन्फ्रेंस। और गुद्दू थर्मल पावर हाउस का एक यूनिट ट्रिप कर गया। सिंध के मुख्तलिफ शहरों में बिजली की फराहमी मुअत्तल।